سب انسپیکٹر شہزاد ترجمان فیصلہ آباد پولیس تعینات۔ شہزاد کو کچھ عرصہ قبل سنگین شکایات پر نوکری سے برخاست کیا گیا تھا۔ سب انسپیکٹر شہزاد کو متعدد بار محکمے سے معطل اور برخاست بھی کیا گیا۔ دوبارہ بحالی پر شہزاد مختلف عہدوں پر تعینات رہا۔ سی پی او فیصلہ آباد نے شہزاد کو پی آر او تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ میڈیا کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شہزاد کی بطور پی آر او تعیناتی کو مسترد کر دیا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، طیب مقبول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی طیب، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ سب انسپیکٹر شہزاد کو فیصلہ آباد پولیس کا ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے، جس کا باقاعدہ طور پر سی پی او فیصلہ آباد کی جانب سے تحریری حکم بھی جاری کیا گیا ہے۔ سب انسپیکٹر شہزاد کچھ عرصہ قبل کرپشن اور دیگر الزامات کی بنیاد پر نوکری سے برخاست کیے گئے۔ سب انسپیکٹر شہزاد کے خلاف 62 قسم کی مختلف سزائیں بھی ان کو دی گئی۔ 4 بار یہ اپنی نوکری میں سسپینڈ ہوئے، جبکہ ایک بار ان کو نوکری سے برخاست بھی کیا گیا۔ ایک مخصوص لاٹھی سفارش پر چیف فیصلہ آباد کی جانب سے شہزاد کو پی آر او تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ اس حوالے سے میڈیا کمیونٹی نے ان کی تعیناتی کو مسترد کرتے ہوئے کسی اہل اور اچھے اہل شخص کو، پروفیشنل شخص کو پی آر او تعینات کرنے کا بھی اپیل کی ہے۔ جی بہت شکریہ طیب اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصلہ آباد ویمن چیمبر آف کامرس کا صدر روبینہ امجد کی زیر صدارت سالانہ اجلاس۔ سینئر نائب صدر تسخیرہ تجمل، نائب صدر رابعہ حامد، ایگزیکٹو ممبر نجمہ افضل، ایگزیکٹو ممبر صدف شوکت، فردوس رائے، رخسانہ کوثر، شمائلہ خان، کمل امجد، سمیہ طاہر نے شرکت کی۔ ہم نے اپنا کام پوری ایمانداری، محنت اور زور سے کیا۔ میں نے جو بھی کامیابی حاصل کی تو وہ میری ذات پر آپ سب کے بھرپور اعتماد اور خلوص کے علاوہ آپ کے ہر ممکن تعاون سے ممکن ہو سکی، جس پر میں آپ سب کی بہت ممنون ہوں۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ چیمبر کے پروفائل کو مزید بہتر کیا جائے، اور اس سال تقریباً جیسا کہ ابھی آپ نے ایک پکٹوریل ویو میں دیکھا کہ 100 مختلف چھوٹے بڑے ایونٹس کیے گئے، اور اللہ کے کرم سے چیمبر ہر جگہ نمایاں نظر آنے لگا، بلکہ نیشنل لیول سے لے کر انٹرنیشنل لیول پر فیصلہ آباد وومن چیمبر کی پہچان اور پروفائل میں اضافہ ہوا، الحمدللہ۔ فیصلہ آباد وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری آج پاکستان میں خواتین کے اعلیٰ ترین چیمبرز میں سے ایک کہلاتا ہے، اور اس نے اپنے قیام کے 6 سال مکمل کر لیے۔ پاکستان میں خواتین کی آبادی آپ سب جانتے ہیں کہ اگرچہ 50% سے زیادہ ہے، لیکن معاشی سرگرمیوں میں ان کی شرکت جو ہے وہ جنوبی ایشیا کے دیگر علاقائی ممالک کے مقابلے میں صرف 9% ہے۔ اس کے باوجود ملک بھر میں خواتین کی بے شمار سکسیس سٹوریز ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر خاندان، معاشرے سے لے کر حکومت کی طرف سے مناسب سہولت فراہم کرنے کے لیے سازگار ان کو جو ہے ماحول فراہم کیا جائے تو بہت زیادہ کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ جب سے میں نے گزشتہ سال اکتوبر میں FWCCI کے صدر کا عہدہ سنبھالا، میرا بنیادی فوکس خواتین کی انٹرپرینیورشپ کو۔ آگے بڑھنے آپ کو بتائیں، جامعہ عبیدیہ علامہ اقبال کالونی میں قائد جمعیت اسلام مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ دوسری جماعتوں سے یا کم از کم ہم سے اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کے آنے پر ان کو خوش آمدید کہیں گے، اور باقی رہا ان کے جو قانونی معاملات ہیں، جو عدالت سے متعلقہ ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے ضرور ہوم ورک کیا ہوگا، اور ایک اطمینان لے کر ہی واپس آ رہے ہوں گے، میرا اندازہ یہ ہے۔ دیکھیے، یہ تو انضمام کی برکات ہیں کہ انضمام کے بعد فاٹا کے عوام کو 6 سیٹوں سے محروم کر دیا گیا۔ ان کو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم ہر سال 100 ارب روپیہ ان کو دیں گے، اور 10 سال تک دیں گے، یعنی 1000 ارب روپیہ ان کو ہم 10 سال تک دیں گے۔ اس وقت تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ ارب تو دور کی بات ہے،
80 करोड़ 90 करोड़ तक उनको मिला होगा 2016-17 से। तो किसी किस्म की वहाँ पर न कोई तरक्याती ऐसे काम हैं जिससे कि आवाम मुतमईन हों, नहीं वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है। पुलिस है तो ऐसी बराए नाम किस्म की महकमा माल वहाँ मौजूद ही नहीं है, न कोई तहसीलदार, न कोई कानूनगो, न कोई पटवारी, नहीं वहाँ लैंड रिकॉर्ड है कि वो जो आबा व अजदाद को ज़मीनें और इलाके अलाट हुए थे उनको कैसे तकसीम किया जाएगा। तो इंज़िमाम के जो समरात उनको मिलने चाहिए थे या जिस तरह उनके साथ वादा किया गया था उस पर पीछे गए हैं, आगे की तरफ कोई कदम नहीं हुआ जी। और सियासी लिहाज से उनको सीटों से इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी यही है कि बड़े कौम को नवीद सुनाए गए कि मुल्क में अमन आ गया, ऑपरेशंस के ज़रिए से हमने लोगों को अमन दे दिया। लेकिन इस वक्त भी मैं आप पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी इंतखाबी मुहिम चलाना किसी उम्मीदवार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। कम से कम मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ कि हमारे हलकों में हमारे लिए कैंपेन चलाना तकरीबन नामुमकिन है इस वक्त। ये बताइएगा कि निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के चेयरमैन के बगैर भी इलेक्शन मुमकिन है। क्या बताइएगा कि वाकई होना चाहिए चेयरमैन पीटीआई के बगैर इलेक्शन के उनकी मौजूदगी में इलेक्शन ज़्यादा पीटीआई को कारकर्दगी के हवाले से देखना चाहिए। पीटीआई को उसके नज़रियात, उसके एजेंडे और उसकी कारकर्दगी के हवाले से देखना है हमें। उसके नज़रियात भी पाकिस्तानी नहीं हैं, उनका एजेंडा भी पाकिस्तानी नहीं है। जामिया उबैदिया इलामा इकबाल कॉलोनी में कायद जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे थे। आपको दिखा रहे हैं जामिया उबैदिया इलामा इकबाल कॉलोनी में कायद जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान बात कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से। करने के नतीजे में उनके बरक्स कारकर्दगी सामने आई है, तो इस जमात को मुल्क की सियासत में होना ही नहीं चाहिए। जी देखिए, ये सवाल तो मेरा है कि जब तक बाजावड़ का वाक़या नहीं हुआ था 1.5 साल या 2 साल के अंदर सिर्फ जमीयत उलमाए इस्लाम के 20 उलमा शहीद हो गए थे। उसके बाद फिर ये धमाका हुआ, 73 शुहदा हमें उस धमाके नहीं थे। उसके बाद फिर और शहादतें हुई जो टारगेट किए गए थे। वजीरिस्तान में यही सूरत हाल है, टांक में यही सूरत हाल है, और बाकी एजेंसियों में किसी में ज़्यादा किसी में कम। लेकिन बहरहाल वहाँ की सूरत हाल जो है अमन व अमान के हवाले से ऐसा नहीं है कि आप उसमें इंतखाबी कैंपेन चला सकेंगे। और यही हमारा एक नज़रिया है कि इस किस्म के जो हालात पैदा किए जाते हैं, जो बड़े मुक़द्दस उन्वानात के साथ बंदूक उठाया जाता है, उसका नतीजा जो है वो नहीं होता जो आपकी नीयत है। उसका नतीजा ये होगा सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा। सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा तो दुनिया कोई आपके मुल्क पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, सरमायाकारी नहीं करेगा। आपके अपने पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो तफसीलात ज़र में कमी आ जाएगी आपकी, तो मुल्क सियासी और माशी लिहाज से और कमज़ोर होता चला जाएगा। ज़बरदस्ती और जबर से कुछ भी नहीं चलता। लोगों को नॉर्मल ज़िंदगी के मौके मुहैया किए जाए, उनका एतमाद बहाल किया जाए। मौलाना साहब ने अपने जो प्लान दिया है, उस प्लान में उन्होंने जनरल और आपके आने वाले चीफ मिनिस्टर के हवाले से उनके इंतजाम के बारे में बात की। आप इस एजेंडे में उनके साथ हैं क्या नहीं? जब मुझसे मशवरा करेंगे तो मैं उनको राय दूंगा फिर। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा, पीडीएम के इत्तेहादी रहे हैं आप, और महंगाई के मुल्क में जो सूरत हाल है, इसको आप किस तरह से आगे इंतखाबात में अवाम के साथ लेके चलेंगे? ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक तवील मुद्दत अब मसला बन गया है। मुल्क की मईशत के हवाले से कोई
कलील मुद्दत मनसूबाबंदी पे हमने बड़ी कोशिश की 1.5 साल में, हम दलदल से निकल नहीं सके। दलदल कहते उसे हैं कि आप निकलने की कोशिश करेंगे तो धस से चले जाएंगे। तो पिछले जो 3.5 साल इन्होंने हुकूमत की है, उसमें उन्होंने मुल्क को इतना दिवालियापन के करीब लाकर खड़ा कर दिया और स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया। आपकी तमाम जो कीमतों का उतार चढ़ाव, टैक्सों का उतार चढ़ाव, ये सारा का सारा इस वक्त IMF के इख्तियार में है। हमारे इख्तियारात ही उनके हवाले कर दिए हैं। सिर्फ हम गालियों के लिए रह गए हैं कि लोग नाराज हों, लोग हुकूमतों को गालियां देते रहेंगे और मालिक हमारा कोई और होगा। तो इस वक्त कम से कम 1.5 साल में जो हुकूमत थी उसने मुल्क को दिवालियापन से निकाल ली। वो जो 17 अरब डॉलर तक हमारे पास रिजर्व था और 2 अरब पे आ गया, उसे दोबारा 11-12 अरब तक पहुंचा दिया हमारे 1.5 साल गवर्नमेंट ने की। तो दिवालियापन से निकली हुई हुकूमत इनको मिली है और खुदा करे और बेहतरी उसमें आए। तमाम तबके, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, सब इस काम में लगे हुए हैं कि मुल्क की मईशत को बेहतर किया जाए। लेकिन कीमतों के हवाले से, बाजार में क़ुव्वत खरीद के हवाले से अभी आम आदमी को समारात मुहैया नहीं हो रहे, लेकिन तवील मुद्दत पॉलिसी के तहत हो जाएंगे इंशाल्लाह। बस साहब, एक आखिरी सवाल ले लीजिएगा कि जनवरी में कहा गया है इलेक्शन होंगे, क्या हो रहे हैं इलेक्शन या नहीं हो रहे? इलेक्शन कराना न कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है और जाहिर है उसने आइन को सामने रखते हुए करना है। लेकिन जनवरी ऐसा महीना है कि शायद यहाँ फैसलाबाद, डेरा इस्माइल खान, लाहौर में तो लोग वोट डाल सकेंगे, लेकिन खुशदार से लेकर तमाम शुमाल बलूचिस्तान, फिर वजीरिस्तान से लेकर चतराल तक, फिर तमाम स्वात, कोहिस्तान, बटग्राम, शांगला, ये हमारे एबटाबाद, मरी तक, ये बर्फानी इलाका, इसमें लोग ही नहीं होंगे। अब वोट वहाँ दर्ज है, लोग नीचे आए हुए हैं, वहाँ वोट डालने वाले ही कोई नहीं है। तो इन चीज़ों को उन्होंने देखना होगा कि उन्होंने जो ये शेड्यूल हमें दिया है, इसमें वोट डालने के काबिल भी होंगे। उधर आपने कानून बनाया हुआ है कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर खवातीन का वोट नहीं पड़ा या इतने फीसद नहीं पड़ा तो दोबारा कराओगे। तो जहां पर सिरे से वोट ही नहीं पड़ सकेगा, उस इलेक्शन का क्या बनेगा फिर? थोड़ा सा लास्ट सवाल सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आप अब जब भी इलेक्शन हो, मतलब जरूरी नहीं है कि जनवरी के अंदर, आप बोला है कि इलेक्शन लेट भी हो सकते हैं, जब भी इलेक्शन होंगे तो आपका सबसे ज्यादा मुकाबला किस पार्टी को? हजरत जमीयत उलमा जामिया उबैदिया इलामा इकबाल कॉलोनी में कायद जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे हैं। कि आपको बताया, महकमा खजाना ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद के लिए 7 करोड़ 62 लाख के फंड्स जारी कर दिए। MC जंग के लिए 1 करोड़ 19 लाख, टोबा के लिए 1 करोड़ 19 लाख जारी। सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत नॉन सैलरी बजट जारी किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा खजाना पंजाब की जानब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए जो है वो सितंबर के नॉन डेवलपमेंट अखराजात की मद में 7 करोड़ से ज़ायद के फंड जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब की जानब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद समेत सूबा भर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए जो है वो फंड जारी किए गए हैं। तमाम तर जो फंड्स हैं वो करंट ईयर और रवां माह सितंबर में तमाम तर होने वाले डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट और दीगर जितने भी अमूर हैं उस पर खर्च किए जाएंगे। और महकमा खजाना पंजाब की जानब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स को मरासा जारी कर दिया गया है, जो सितंबर में तमाम अखराजात की मद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद 7 करोड़ से ज़्यादा के फंड जो है खर्च करेगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए इमरान असलम। डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद की ज़ेर सदार तीसरी डिप्टी कमिश्नर कॉन्फ्रेंस, चारों डिप्टी कमिश्नर्स के इजलास में शिरकत। सिलवत सईद ने डिप्टी कमिश्नर्स को अपने अपने अजला में सफाई के मामलात आज खुद मॉनिटर करने के अहकाम दिए। कमिश्नर्स की रेवेन्यू को इलेक्शन, ई रजिस्ट्रेशन और प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत। महकमा तालीम की प्रमोशन कमेटी की मीटिंग 100 असातिज़ा की तरक्कियों के केसेस ज़ेर बहस आए। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया कहते हैं तमाम असातिज़ा के कागजात की स्क्रूटनी की जाएगी। तमाम डॉक्यूमेंटेशन पूरी होने के बाद एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स को 15वीं से 16वीं स्केल में SST के ओहदों पर तरक्कियाँ दी जाएंगी। आपको बता रहे हैं तमाम डॉक्यूमेंटेशन पूरी होने के बाद एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स को 15वीं से 16वीं स्केल में SST के ओहदों पर तरक्कियाँ दी जाएंगी। 100 असातिज़ा की तरक्कियों के केसेस ज़ेर बहस आए। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया कहते हैं तमाम असातिज़ा की कागजात की स्क्रूटनी की जाएगी।
तमाम असातिज़ा के डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाएगी। आपको बता रहे हैं महकमा तालीम की प्रमोशन कमेटी की मीटिंग 100 असातिज़ा की तरक्कियों के केसेस ज़ेर बहस आए। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया कहते हैं तमाम असातिज़ा के कागजात की स्क्रूटनी की जाएगी। बात करते हैं इसी हवाले से जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर बताइएगा। जी, महकमा तालीम की तरफ से प्रमोशन कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें 100 असातिज़ा की तरक्कियों के केसेस डिस्कस किए गए। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया ने सदारत की प्रमोशन कमेटी की मीटिंग की जिसमें उनका कहना था कि तमाम असातिज़ा की डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी जो है वो जब तक मुकम्मल नहीं होगी उनकी प्रमोशन जो है वो नहीं दी जाएगी। इस हवाले से तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है उनको पूरे करने और उनकी अहलियत पर ही उनको प्रमोट करने का कहा गया। और DO एलिमेंट्री DO सेकेंडरी एजुकेशन मलिक मंजूर को ये टास्क दिया गया कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करें और वेरिफिकेशन करें तमाम डॉक्यूमेंट्स की। इस हवाले से जो अहल टीचर होंगे उनको एलिमेंट्री स्कूल टीचर से SST के अहदों पर 16 स्केल में तरक्कियां दी जाएंगी। इस डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी में पंजाब हुकूमत की तरफ से डिप्टी सेक्रेटरी तालीम अली असदुल्लाह ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल गफार, न्याज अहमद तबस्सुम और डिप्टी DO इफ्तिखार राना जो है वो भी इस प्रमोशन कमेटी में शरीक थे। CEO एजुकेशन का कहना था कि खुफिया परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिपोर्ट जो है उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा असातिज़ा को तरक्कियां देने के हवाले से, और तमाम असातिज़ा अहल जो होंगे उनको बहुत जल्द प्रमोशन ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए जहांगीर। फैसलाबाद में पेस्टिसाइड का कारोबार करने वालों के लिए अहम खबर, नवंबर में मुलाजमीन के लिए ट्रेनिंग का इनेकाद किया जाएगा। 9 ता 25 अक्टूबर तक दरख्वास्तें जमा होंगी। साबिक लाइसेंस की तजदीद भी लाजम करार। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक ट्रेनिंग कराई जाएगी। 25 अक्टूबर के बाद दरख्वास्त शामिल नहीं की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा। यहाँ पर सर्टिफाइड बीचों के हवाले से बात करें, यहाँ पर यूब रिसर्च के हवाले से, तो यहाँ पर एक नया प्लान किया गया है कि यहाँ पर जितने भी सर्टिफाइड जहर बेचते हैं, ज़रूरी जहर बेचते हैं, तो उन तमाम की ट्रेनिंग का इनेकाद किया जाएगा यूब रिसर्च में। इस सिलसिले में जो शोबा बनाया गया पेस्टिसाइड को डील करने के हवाले से, तो यहाँ पर 9 अक्टूबर से लेकर यहाँ पर 25 अक्टूबर तक दरख्वास्तें जमा होंगी। जो भी कोई सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है पेस्टिसाइड के हवाले से, तो वहाँ पर ले सकेगा। ट्रेनिंग 9 से 25 के दरमियान अपनी दरख्वास्त जमा करवाई जा सकेगी। फ़ीस उसमें जो है वो आयद की जाएगी। उसके बाद जो है वो उन्हें ट्रेनिंग का इनेकाद करवाया जाएगा। तो इस सिलसिले में यूब रिसर्च हकाम का ये कहना था कि ज़रूरी जहर की जो बढ़ती हुई शिकायत है उसके पेश नज़र तमाम जितने भी लोग बेचते हैं, कारोबार करते हैं, उन तमाम को ट्रेनिंग का इनेकाद करवाया जा रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर जो भी मसाइल सामने आएंगे, यहाँ पर जो भी बेचते हैं अगर वो बगैर लाइसेंस के बेचेंगे, बगैर ट्रेनिंग के बेचेंगे, तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अब्दुर्रहमान। जंग में दूसरा स्पोर्ट्स मेला आर्चरी के मुकाबले, जिला भर से टीमों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। 3 रोज तक जारी रहने वाले मुकाबलों में 150 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत करेंगे। मजीद बात करते हैं इस हवाले से वसीम अजीज से। जी वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग स्पोर्ट्स मेला में आज जो है वो आर्चरी के मुकाबले मुनक्किद हुए। आर्चरी के मुकाबलों में जो है वो ज़िला भर के खिलाड़ियों ने शिरकत की। मेरे साथ अमानुल्लाह शान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज आर्चरी के मुकाबले मुनक्किद हुए, इसमें कितनी टीमें शामिल थी और ये कितने दिन तक जारी रहेगा? इंटर क्लब डिस्ट्रिक्ट आर्चरी चैंपियनशिप जो कि जंग स्पोर्ट्स मेला वाले से मुनक्किद हुई, उसमें 6 क्लब्स ने हिस्सा लिया और 92 प्लेयर्स थे। और आज पहले दिन का खेल ख़त्म हुआ जिसमें अंडर 6 बॉयज़, अंडर 8, अंडर 12, अंडर 15 बॉयज़, सीनियर बॉयज़ और सीनियर गर्ल्स के इवेंट मुनक्किद हुए। और ये इवेंट 2 दिन मज़ीद चलेगा और इंशाल्लाह इसका जो फाइनल होगा वो मंडे को होगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये इवेंट जो है 2 दिन तक मज़ीद जारी रहेगा। सोमवार को इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। यहाँ पर फाइनल मुकाबले होंगे और ख़ास तौर पर खिलाड़ियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर के इस इक़दाम को खूब सराहा जा रहा है। उनका यही कहना है कि खेलों का अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया वसीम। डिविजनल कमिश्नर सिल्वर सईद की अल-हुदा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम तकमील कुरान प्रोग्राम में शिरकत। सरबरा अल-हुदा वेलफेयर सोसाइटी नाइला महमूद के हमरा तकमील कुरान मुकम्मल करने वाली तालिबात में कुरानी नुस्खे बतौर तोहफे तकसीम किए गए। कमिश्नर सिल्वर सईद ने तालिबात को कुरान करीम हिफ्ज करने पर मुबारकबाद दी। डॉक्टर फरहत हाशमी ने एक पहला चैरिटी स्कूल की ओपनिंग की और इस्लाम एरिया में जब हम चीज़ें बांटने जाते थे तो कूड़े पे से खाना खाता देखते हुए तो हमें बड़ा एक तकलीफ होती थी। देन वी स्टार्टेड स्कूल्स, 1 स्कूल, 2 स्कूल, 3 स्कूल, फिर हमने कोई काफ़ी सारे 14 स्कूल बना लिए और उनको रन करना, सारे वॉलंटियर्स हम थे, सब जो उसको देख रहे थे, खुद ही ओन कर रहे थे, खुद ही चला रहे थे। इन द मीन टाइम हमें थोड़ा फील हुआ कि इसको चलाना काफ़ी बड़ा टास्क हो गया है। स्कूल में 3-3, 4-4 सौ बच्चा उतना ही बाहर बैठा है जितना स्कूल के अंदर भी बच्चा है ना।
تو ان دا مین ٹائم ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ایسا جائے جس میں سے فنڈ آئے اور اس کو ہم ان سارے اسکولس کو چلا سکیں. وہ اس انٹینشن سے نہیں تھا. ان دنوں میں بہت زیادہ ٹریولنگ کر رہی تھی یو کے میں، اور ادھر آنا جانا میرا بہت زیادہ تھا کچھ فیملی پرابلمس کی وجہ سے. تو وہاں میں نے والنٹیئر اسکول میں کام کیا. جب میں نے وہاں والنٹیئر اسکول میں کام کیا تو مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہوئی کہ میرا نواسا ہر مینرزم، ہر اخلاقیات وہ سکھاتا تھا مجھے آ کے اسکول سے آ کے، کہ کسی سے بات کیسے کرنی، کسی سے بولنا کیسے، بس میں کیسے بیٹھنا، اپنا سامان کیسے رکھنا ہے. اینڈ ہی واز جسٹ 5 years old. میں مسز نائلہ سے ان کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گی کہ اتنا بڑا کام کرنا، اکیلے اس طرح اس سفر کو شروع کرنا ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگوں میں بیسک چیزوں کا شعور شاید نہیں رہا، اور ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپنی آئیڈینٹی کو جو ہے کمپرومائز کرنا شروع کر دیا. تو ہیٹس آف ٹو یو. اور بہت بڑی یہ ایک سعادت ہے. مجھے حدیث مبارکہ یاد آتی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر اس کو سکھائے. تو بہترین لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا جو ہے نا وہ بھی ایک اللہ کی رحمت کے باعث ہی ممکن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جن لوگوں پر رحمت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جن سے بھلائی کا معاملہ کرنا شروع کرتا ہے، ان کو اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. تو وہ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں، جو اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان کو اپنی زندگی. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.